Good morning to all of you. Am I clearly audible? Let me just put the message in the group and then we'll start the session. Okay, so in the last lecture, we have discussed about the data link layer. So in that, we have seen the functionalities of the data link layer, design issues in the data link layer, what are the services provided by the data link layer, and we have started the topic that is error detection and correction, right? So in that, we have seen what is error, right? How the error can be detected, types of the error. We have seen the two types of error, single beat error and the burst error. And we have started the new topic that is the error detection technique, right? And in that we have seen the parity check, right? हमने वो देखा था कि parity check क्या है, right? We have in the parity checking we have seen the two types of parity checking, right? Even parity checking and odd parity checking. So how the even parity is implemented, that is also seen, and how the odd parity is implemented, that example we have also seen. After that, we have seen what are the limitations of the parity checking. Let me share my screen here. Is my screen visible to all? Okay, so you can see here the types of error, error detection technique, two types of parity checking, even parity checking, odd parity checking, limitations of parity checking, right? We have seen the two limitations of parity checking, and then we have seen the forward error correction, right? So these are the topics that we have already discussed in the last lecture, right? Now today we will see the another error detection technique, that is a checksum.
Okay, so today we will see about the checksum, right? That is the error detection technique. So here today we'll discuss about the checksum, that is an error detection technique. अभी जो चेकसम है वो दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? दो तरीके से चेकसम का एग्जांपल सॉल्व हो सकता है. लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर. So first is checksum for error detection, right? So यहाँ पे क्या होगा that in each word or we can say in each data we can say the checksum value is added, right? Now let's say कि यहाँ पे concept क्या है checksum का. Let's say कि data अगर कोई sender भेज रहा है and the data is something like this 6, 11, 10, 0, 10, राइट? ऐसा कोई डेटा सेंडर ने सेंड किया, राइट? अभी यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, कितने वर्ड्स है यहाँ पे? W1, W2, W3 एंड W4. यहाँ पे 4 वर्ड्स है, राइट? नाउ हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी चेकसम. अभी चेकसम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होता है? लेट्स से दैट देयर आर 2 एंटिटीज, राइट? कोई भी ट्रांसमिशन होगा तो दो एंटिटीज के बीच में होगा. So let's say there is one transmitter here who is transmitting this data. अभी ट्रांसमिट करने के टाइम पे क्या होगा, पहले ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा and one value that is obtained, that is the sum of this value, and that's why it is referred to as a checksum. अभी मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज का सम करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 plus 11 plus 0 plus 10. So the value will be 10 plus 11, 21, 21 plus 6, 27. 27, that is the sum of this, all the words in the data. And that is, we can say, that's why it is referred to as a checksum. जिसको क्या बोला जाता है? checksum बोला जाता है, right? अभी यहाँ पे ट्रांसमीटर जब डेटा सेंड करेगा तब क्या होगा? We can say यहाँ पे let's say this is the data that is sent by the sender. This is the data. और यहाँ पे जो वैल्यू होगी that is a CS, checksum, right? वो क्या होगा? 27, right? At the another side there is one receiver who is receiving this data. तो वो भी checksum calculate करेगा, right? The same process will be followed at the receiver side also, right? So there will be a data here and the checksum value is calculated. Consider this is CS1. जो रिसीवर के साइड चेकसम वैल्यू कैलकुलेट होती है, that is a checksum 1, right? Just for the differentiation I am just giving the CS and CS1, and here the data is there. So the same process will be followed at the receiver side also. Now what happened here at the transmitter side, all the values are added and the 27 value that is obtained, that is a checksum value, that is the transmitter has sent to the receiver. Same process will be followed. The data values will be added at this in this format, and the checksum value obtained is 27. Now it will be checked that if CS is equals to CS1, then there is no error, right? CS, that is the checksum value generated by the transmitter, is equals to the checksum value generated by the receiver. If they are same, then there is no error in the data, right? अगर दो values जो है वो different आती है, right? If CS not equals to CS1,
then we can say there is some error in the data. तो वो error जो होगी वो तुरंत ही detect हो जाएगी, right? Now another case, this is the case 1. ये केस 1 है जो एक तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है. दिस इज केस 1. नाउ केस 2, by complementing or the negation of the sum. Now what happens in this case? यहाँ पे क्या होगा? Let's see. We are taking the same example here. So here the transmitter is sending the data along with the checksum value, but here there is one difference. यहाँ पे data तो transmit होगा, that is a 6, 11, 0, 10. This is the data, right? But यहाँ पे जो checksum value होगी उसकी नेगेटिव वैल्यूज, या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यहाँ पे checksum उसकी 27 है, so it will be represented as -27, right? So this is the process at the transmitter side, and at the receiver side the same process will be there, and the original checksum value will be added, 6, 11, 0, 10. अब यहाँ पे क्या होगा? How to calculate the checksum here? Here we are adding these two checksum values. This is CS, this is CS1. Adding two checksum here, that is -27 plus 27. So obviously it will be 0. If we get the 0 here, then there is no error. अब 0 कब नहीं आता है कि लेट्स से कि यहाँ पे मान लो -25 है और यहाँ पे 27 है, तो वैल्यू क्या आती? +2, राइट? सो द रिसीवर विल इजीली आइडेंटिफाई, इजीली डिटेक्ट दैट देयर इज सम एरर इन द डेटा, राइट? बट दोनों का सम अगर 0 हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन द डेटा. नाउ अभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा. अभी इतना तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है, राइट? अभी यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट करते तो कैसे होता है? अभी checksum वैल्यू क्या है? 27. इफ वी आर कन्वर्टिंग द 27 इनटू अ बाइनरी नंबर, देन व्हाट विल बी द नंबर हियर, राइट? तो यहाँ पे देखते कि इसका बाइनरी करना तो आता है सबको, राइट? अगर मैं इसका बाइनरी करती हूँ तो मुझे बाइनरी कैसे मिलेगा? तो लेट्स से कि मैंने ये नंबर लिखा 11011, तो इसका 27 का बाइनरी ये मिलता है 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 एंड 2^4, राइट? अगर उसका डेसिमल करते हैं तो 2 2 4 2 8 2 16 plus 8 plus 2 plus 1, that is 27. so बाइनरीज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 27 का 1101. पर हम याद रखना है कि हमेशा डिजिट को बिट को 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है, राइट? चेकसम वैल्यू हमेशा 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करनी है while doing the ones complement, राइट? तो इसको मैं 4 बिट में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? we require a 4 bit integer. तो मैं क्या कर दूंगी? मेरे पास ये 4 बिट है, ये 1 को मैं यहाँ मूव कर दूंगी,
1011, यहाँ पे जो 1 है वो कहाँ पे आ जाएगा, हियर। तो 1011 एंड 1। अभी यहाँ पे मुझे क्या परफॉर्म करना है, XOR परफॉर्म करना है, सॉरी एडिशन करना है। सो 11 दैट इज 10, ये तो पता है। 11 दैट इज 10, 10 ये 1 आ जाएगा नीचे, ये 1 आ जाएगा नीचे, राइट। अब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है, 12 है। बट अगर मैं इसका इनवर्स कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट से चेकसम हो रहा है, तो क्या कर रही हूँ मैं, इनवर्सिंग दिस। यहाँ पे मैं सारे स्टेप जो है वो डिटेल में लिख रही हूँ, ताकि आप जब रिफर करो तब आप इजीली समझ पाओ, राइट। सो इनवर्सिंग, तो मुझे क्या मिलेगा इसका, 0011 and the decimal for this is 3. Now at the transmitter side, again the process will be performed. Transmitter, receiver. Transmitter side वही चीज perform होगी, 6, 11, 0, 10 और ये जो इनवर्स वैल्यू है वो ऐड होगी, राइट। ये सारी चीजें ट्रांसमीटर के साइड जाएगी, रिसीवर इसे रिसीव करेगा, उसे प्लस करेगा। तो 6 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 3, तो क्या मिलेगा उसको, 30। 30 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 1 1 1 0। अभी हम 4 बीट में रिप्रेजेंट करना है इसको, राइट। सो मुझे ये 1 को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 1 1 1 0 1, क्योंकि ये 1 जो है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो 1 1 1 1, इनवर्सिंग दिस, एंड दैट इज अ 0 0 0 0, राइट। ये बहुत सारे तरीके से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें एरर है या नहीं, राइट। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से बोला गया है तो यू नीड टू फॉलो द केस 2। अगर सिर्फ ऐसा बोला है कि चेक वेदर देयर इज एरर इन द डेटा बाय यूजिंग द चेकसम टेक्निक, so you can use any of this, right। so दो तरीके से किया जा सकता है। so I have represented both the case 1 and case 2। so this is all about the checksum, right। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्लियर कट है, सिर्फ इनवर्स कर करके पूरा रिप्रेजेंट करना है। चेकसम वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है, चेकसम वैल्यू ऑब्टेन्ड होने के बाद उसका बाइनरी में कन्वर्जन करना है, 4 बीट में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको इन्वर्स करना है। सेम प्रोसेस रिसीवर के साइड होगी, राइट। रिसीवर वो सारी चीजें जो डेटा है वो उसको ऐड करेगा, फिर उसका सम करेगा, 4 बीट में रिप्रेजेंट करेगा, फिर एडिशन करके जो भी आएगा उसको इन्वर्स करेगा। अगर एडिशन हमको इन्वर्स करके हमको 000 मिल जाता है, देन देयर इज नो एरर। अगर एक भी बिट बच जाता है, दैट मींस देयर इज एरर इन द डेटा। That simple, right? Now the another error detection technique, that is a CRC, that is very 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 important, right? एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, that is the CRC। This is second, this is third, CRC, cyclic redundancy check,
नाउ पे अटेंशन फॉर अ व्हाइल, अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तुरंत पूछ लो बीच में इंटरप्ट करके, राइट। चेकसम सबको क्लियर है? जस्ट एक्नॉलेज मी इन द चैट बॉक्स। अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, so please pay attention। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, Vasu, are you there? Yes, ma'am. Okay, what about others? Sushil, Prasad, Yashang, Rishabh, Priyank, Meghna, Isha? Yes. Okay. Now, moving with the cyclic redundancy check. इसका एग्जाम्पल 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है। अगर एक बार समझ लोगे, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, you can easily solve any example। ठीक है? Okay. So cyclic redundancy check is the error detection technique that is used in the data link layer, right? और ये बहुत ही accurate technique है, right? और easy भी है, हम easily solve कर सकोगे if it comes in the exam। Okay. So example number 1. Now cyclic redundance में आपको दो चीजें दी गई होंगी। Whether it can be ऐसा लिखा होगा कि डेटा दिया होगा और दूसरा होगा जनरेटर, राइट। या तो फिर आपको ऐसा दिया होगा वर्ड एंड की, इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, राइट। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे एक डेटा दिया जाता है दैट इज 1 0 1 1 0 1 1, right? This is the data, or I can say this is the word which is given। एंड जनरेटर, एक जनरेटर दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये डेटा सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर उसे रिसीव करेगा, तो अगर उसमें कोई चेंज आया है दैट मींस देयर इज एन एरर। फॉर दैट देयर इज वन की और वी कैन से वन जनरेटर इज गिवन टू चेक वेदर दिस डेटा कंटेन्स एन एरर और नॉट, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे सीआरसी दिया है, दैट इज द जनरेटर दिया है, CRC जनरेटर दैट इज 1 1 0 1। अगर ये डेटा और जनरेटर की बजाय मैं वर्ड और की का भी यूज कर सकती हूँ, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज हो सकती है, राइट। अभी उसको सॉल्व कैसे करना है? नाउ लेट्स से कि सेंडर साइड एक प्रोसेस फॉलो होगी, एक रिसीवर साइड प्रोसेस फॉलो होगी। दिस इज अ सेंडर साइड, राइट, एंड एट द अनदर साइड देयर विल बी अ रिसीवर। तो लेट्स से कि यहाँ पे सेंडर डेटा भेज रहा है 1 0 1 1 0 1 1। मेक श्योर कि आप जो डेटा के बिट्स लिख रहे हो, अगर उसमें से कोई भी एक बीट आपने गलत लिख दिया दैट मीन्स यू विल नॉट गेट द आंसर, राइट। तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे डेटा लिख रहे हो तब 2 बार वेरीफाई करके लिखो कि भाई एक भी बीट मैंने गलती से गलत नहीं लिख दिया है या नहीं, राइट। सो 1 0 1 1 0 1 1। नाउ दी जनरेटर, अभी यहाँ पे जनरेटर कैसे लिखना है मुझे? दिस इज वी कैन से डिवाइजर भी बोल सकते हैं, 1 1 0 1। नाउ यहाँ पे मुझे सीआरसी बीट ऐड करनी है, बट अभी मुझे नहीं पता है कि सीआरसी बीट क्या है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जितने भी जनरेटर के बिट्स दिए गए होंगे उसमें से मुझे -1 करके उतने बिट्स मुझे डेटा में ऐड करने हैं, राइट। सो यहाँ पे जनरेटर के बिट्स कितने हैं? दैट इज 4, राइट। तो मुझे उसमें से एक माइनस करना है, तो 4 - 1 दैट इज 3, और 3 बिट्स मुझे यहाँ पे डेटा में ऐड करने हैं। पर 3 बिट्स कौन से होंगे अभी तो कुछ पता है नहीं, so I'll add 0 0 0,
So 3 bits will be added as a CRC bit here. हर बार 3 जीरो नहीं होंगे. मेक श्योर कि आपका जनरेटर का बिट 5 है तो आप 4 ऐड करोगे. अगर 6 है तो 5 ऐड करना है. जितने भी बिट्स दिए होंगे उससे एक -1 करके उतने बिट्स आपको डेटा के साथ ऐड करने हैं. राइट, इसलिए यहाँ पे मैंने बॉक्स किया है ताकि आपको पता चले. अभी यहाँ पे मुझे XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो XOR में क्या होता है, अगर दो बिट्स सेम है तो 0 होगा, और दो डिफरेंट बीट है तो 1 होगा. राइट, दिस इज द XOR ऑपरेशन. ये तो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे अब मैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे जो डिवाइजर दिया होगा मैं उसके साथ यहाँ पे XOR ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी इस डेटा के साथ. तो यहाँ पे क्या जनरेटर दिया है 1101. राइट, सो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ये बीट से स्टार्ट करूंगी 1 1 0 1. अभी XOR करो उसका. सेम बीट है 0, डिफरेंट बीट है 1, डिफरेंट बीट है 1, सेम बीट है 0. बाकी सारी जो वैल्यूज है वो मुझे नीचे लाके रख देनी है. 0 1 1 ट्रिपल 0. राइट, अभी फिर से XOR ऑपरेशन करना है, बट अभी मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, जो लीडिंग वन है वहां से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे लीडिंग वन क्या है, दैट इज दिस वन. राइट, सो यहाँ से फिर से मैं स्टार्ट करूंगी. तो डिवाइजर मेरा जनरेटर क्या है 1101. तो 1 1 0 1. फिर से XOR ऑपरेशन परफॉर्म करो. सेम बिट 0, सेम बिट 0, सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1. राइट, बाकी सारे बिट्स ऐसे नीचे उतर जाएंगे 1 1 0 0 0. अभी लीडिंग वन क्या है यहाँ पे, ये है. राइट, सो फिर से XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटर. सो 1 1 0 1. फिर से XOR परफॉर्म करो. सेम बिट 0, सेम बिट 0, डिफरेंट बीट 1, डिफरेंट बीट 1, और ये जो 2 0 है उसको नीचे उतार दो. फिर से लीडिंग वन से स्टार्ट करो. क्या है, जनरेटर का यूज करो 1 1 0 1. अगेन XOR ऑपरेशन. सेम बिट 0, सेम बिट 0, सेम बिट 0, डिफरेंट बीट 1. अभी यहाँ पे मुझे CRC बिट मिल गया है. राइट, दैट इज मुझे कितने CRC बिट लेने हैं, मेरा जनरेटर कितने बीट का है, 4 बीट का है. तो मुझे CRC बिट कितने लेने होंगे, 4 - 1 3. तो यहाँ पे मुझे सेंडर के साइड से CRC बिट मिल गए हैं. आई विल टेक द लास्ट 3 बिट्स एज अ CRC बिट, और अभी मैं उसको रिसीवर के साइड ऐड करूंगी. रिसीवर के साइड सारी प्रोसीजर वही होगी, बट इंस्टेड ऑफ दिस 3 0 इट विल बी 0 0 1. राइट, so now we'll do the process at the receiver side. The same process will be followed. तो डेटा क्या है, 1 0 1 1 0 1 1. वेरीफाई कर लो एक बार. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1. और हमारा जनरेटर 1 1 0 1 1 1 0 1. अभी CRC बिट क्या कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं. अभी मुझे CRC बिट यहाँ पे मिल गए हैं. राइट, सो आई विल ऐड 0 0 1 इंस्टेड ऑफ ट्रिपल 0. सो रिसीवर के साइड सेम प्रोसेस होगा. सो अगेन विल मेक यूज ऑफ दिस जनरेटर. सो XOR ऑपरेशन 1 1 0 1. सेंडर साइड पहले समझ में आया, तभी मैं आगे रिसीवर साइड जाऊं. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहां से ही स्टॉप हो जाती हूँ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सेंडर साइड?
Okay. Now at the receiver side, the same process will be there. We'll make use of this generator here, and the XOR operation will be performed. So same bit 0, different bit 1, different bit 1, same bit 0, और ये जो सारे बिट्स है वो मैं ऐसे यहाँ पे नीचे उतार दूंगी. Again, XOR operation start with the leading one. So leading one यहाँ पे ये है. So again we'll make use of generator 1 1 0 1. तो सेम बिट 0, सेम बिट 0 0, डिफरेंट बीट 1 और बाकी सारे बिट्स ऐसे नीचे उतर जाएंगे. अगेन स्टार्टिंग विद द लीडिंग 0, so 1 1 0 1, सेम बिट 0, सेम बिट 0, different beat 1, different beat 1 0 1. Again make use of this generator 1 1 0 1, same bit 0 0 0 0. So here we get at the receiver side all bits 0, that is no error. If we get all the bits 0, then that means there is no error in the data. सेंडर साइड जो सेंडर ने डेटा सेंड किया, रिसीवर साइड वही प्रोसेस से रिसीवर ने उसको कैलकुलेट किया, एंड रिसीवर साइड receiver will get all the bits 0, that means there is no error in the data. Is it clear to all of you? Now अभी जो ये क्वेश्चन है वो एक और तरीके से आ सकता है. ना मान लो कि आपको ऐसे दिया होगा, some data will be given 1 1 0 0, और आपको जनरेटर या फिर एज अ की टर्मिनोलॉजी यूज करके दिया होगा, दैट इज अ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. तो आप बोलो कि मैडम ये जनरेटर की तो कोई बिट्स दी नहीं है, तो हम इस जनरेटर का यूज कैसे करेंगे, राइट? तो आपको पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, राइट? सो इन we are converting this bits in, we can say considering the power of x. तो यहाँ पे क्यूब की पावर है, तो वहां पे 1 होगा. क्यूब के बाद क्या आता है? स्क्वायर आता है. तो x रेज टू 2, पर वो नहीं दिया है, तो उसकी जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे. फिर x की पावर 1 है, तो वो दिया है, सो 1, और जो x की पावर 0 होती है तो उसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं, सो 1 0 1 1, right? So in this way the generator we can just we can say simplify the generator like this. सीआरसी समझ में आया? ये एक एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करना है. अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, राइट? आई एम यूजिंग द टर्मिनोलॉजी हियर इज क्वाइट डिफरेंट. लेट्स से कि यहाँ पे दिया है वर्ड 1 0 0 1
0 0 and the key will be 1 1 0 1, right? That is the key. Right, so this two terminology might be there in the exam also, right? So this is you have to do एज अ होमवर्क, राइट? ये दो एग्जाम्पल है वो आप अपने तरीके से सॉल्व, आपको अपने तरीके से सॉल्व करने हैं. सो आई होप सीआरसी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सीआरसी में किसी को कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू रिपीटेडली. तो सीआरसी एग्जाम के टाइम पे करना है, राइट? ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है तो नहीं आएगा. अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम रहती है तो आपके शायद डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों होते हैं, राइट, एग्जाम में. तो डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें सीआरसी का छोटा सा एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, दैट वेरीफाई that whether this data has an error or not, right? So you must have to clear with these concepts. Okay, now the next topic is multiple access protocol in computer network. यहाँ पे MAP जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज MAP. यहाँ पे हमारा एरर डिटेक्शन खत्म होता है. So multiple access protocols, we can say data link layer is responsible for the transmission of data between two nodes, right? दो nodes के बीच में जो transmission होता है, that is the multiple access protocol, right? Now इसके main functions क्या है? Data link control and the multiple access control, right? So this two things that you have to remember, right? So data link layer mainly, let me share my screen here. I just forgot it. तो यहाँ पे एज वी ऑल नो कि यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी होती है, राइट? जो भी इंटरमीडिएट स्टेशन होते हैं वहां से जो भी जितने भी होप्स आते हैं दो नोड्स के बीच में, वो सारे होप से डेटा पास होके जाता है, राइट? तो यहाँ पे वी कैन से कि ये जो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर में ट्रांसमिशन होता है, दैट इज बिटवीन टू नोड्स एंड दिस ट्रांसमिशन कैन बी डन, वी कैन से विद द हेल्प ऑफ द होप्स व्हिच आर देयर बिटवीन दिस टू नोड्स. अब इसके दो फंक्शंस है, डेटा लिंक कंट्रोल
and the another one is multiple access control. अभी डेटा लिंक कंट्रोल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? We can say for the reliable transmission of message over a transmission channel by using the technique like framing, error control, flow control, right? So उसके लिए जो we can say कि जब reliable transmission की बात आती है between the nodes, at that time the data link control is used, right? तब data link control use होता है, बट उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक यूज होती है, जैसे कि फ्रेमिंग जो हमने फंक्शनलिटीज में देखा, डेटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटीज में framing, error control, flow control, right? These are the functionalities that we have already seen in the data link layer, right? So ये सारी functionalities का use करके we can say the reliable data transmission can be achieved, right? Now one thing we can say कि multiple access control है वो किसके लिए use होगा? So we can say if there is a dedicated link between the sender and the receiver, we can say at that time तो data link control use होता है. बट मान लो कि कोई नोड के बीच में कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है, राइट? और डेडिकेटेड लिंक नहीं है, दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल पाथ थ्रू व्हिच द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, जैसे हमने स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग टेक्निक में देखा था, राइट? सो मान लो कि अगर कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, एट दैट टाइम द मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड. Just wait for 2 minutes.
Okay, sorry for the inconvenience caused. Okay, so we were talking about the multiple access control. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल किसके लिए यूज होता है कि जब कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं होती है दो नोड्स के बीच में, एट दैट टाइम दी मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल इज यूज्ड, राइट. जब डेडिकेटेड लिंक नहीं होती है दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल पाथ्स, राइट. देयर आर मल्टीपल स्टेशंस कैन एक्सेस द चैनल साइमल्टेनियसली. तो व्हाट हैपेंस कि जब सेंडर वी कैन से बहुत सारे जो होस्ट होंगे वो एक साथ एक लिंक पे डेटा ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे, तो व्हाट हैपेंस, देयर आर द चांसेस ऑफ कोलाइजन. कोलाइजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट. लेट्स से कि कोई एक नेटवर्क है उसमें 4 to 5 होस्ट है, राइट. अभी वो 4 to 5 होस्ट कोई डेटा भेजना चाहते हैं दूसरी तरफ, कोई दूसरे नेटवर्क में कोई दूसरे होस्ट को, राइट. एंड लेट्स से कि कोई डेडिकेटेड पाथ तो है ही नहीं, राइट. सो व्हाट दे विल डू, किसी को पता नहीं है कि वो कौन सी चैनल यूज कर रहा है. सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो 3 होस्ट है वो सेम चैनल को यूज कर रहे हो, राइट. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन इन केस ऑफ दैट. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर कोई क्लास है जो पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ है, अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर देने लगेंगे, सो व्हाट हैपेंस, अ chaos will be created, right. And we can say कि some data might be lost. टीचर को कोई एक सिग्नल अच्छे से नहीं मिलेगा, सिग्नल दैट मीन्स कोई एक स्टूडेंट का आंसर अच्छे से नहीं मिलेगा, राइट. so that is the responsibility of a teacher कि स्टूडेंट के पास से एक एक करके आंसर को गेट करे, एक एक करके स्टूडेंट को सुने, राइट, ताकि उसको हर एक स्टूडेंट के पास से अच्छे से आंसर मिल सके, राइट. So the multiple access protocol works in the same way, right? Therefore, it is required to make use of a protocol while sharing the data on a non-dedicated channel. जब non-dedicated channel पे कोई data share किया जाता है, so it is always necessary to make use of this protocol, right? अभी multiple access control के mainly 3 protocols है: random access, controlled access, and channelization. लेट मी जस्ट टेक यहाँ पे मुझे एक इमेज ही मैं ले लेती हूँ. ओके डाउन, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेते हैं. ओके ओके डन. ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज ही कॉपी कर लेती हूँ. इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम.
Okay, due to network issue, I was disconnected. Okay, आपका 10 बजे लेक्चर है कोई? Okay, no problem. अभी हमारा लेक्चर 11 बजे है. I'm just leaving the meeting now. Just write your enrollment number in the chat box and please join the class sharp at 11:10. 11:10 को प्लीज क्लास ज्वाइन कर देना ताकि मैं लेक्चर जल्दी से स्टार्ट कर सकूं. And I am creating the tab in the Google Classroom. Those who wants to submit their module assignment, please submit it over there.